Hi guys, you are most welcome. Today's a new question. Question number 7. Receipts and payment account of Shankar Sports Club is given below for the year ended 31st March 2021. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2021. In receipt side to cash in hand, opening rupees 2600, to entrance fee 3200, to donation for building rupees 23,000, to locker rent 1200, to life member fee 7,000, to profit from entertainment 3,000, to subscription 40,000. Total of receipt side is equal to 80,000. And in payment side, by rent rupees 18,000, by wages 7,000, by billiard table 14,000, by furniture 10,000, by interest 2,000, by postage 1,000, by salary 24,000, by cash in hand closing rupees 4,000. Total of payment side is equal to rupees 80,000. Prepare income and expenditure account and balance sheet with the help of the following information. Subscription outstanding on 31st March 2020 is rupees 1,200 and rupees 2,300 on 31st March 2021. Opening stock of postage stamp is rupees 300 and closing stock is rupees 200. Rent rupees 1,500 related to the year ended 31st March 2020 and rupees 1,500 is still unpaid. On 1st April 2020, the club owned furniture rupees 15,000, furniture valued at rupees 22,500 on 31st March 2021. The club has a loan of rupees 20,000 as the rate of 10% per annum, which was taken in years ended 31st March 2020. Okay, let's start for question this solution. हाय गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के माध्यम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. Receipts and payment account for the year ended 31st March 2021. That's your receipt side. In receipt side, to cash in hand opening 2,600, to entrance fee 3,200, to donation for building 23,000, to locker rent 1,200, to life membership fee 7,000, to profit from entertainment 3,000, and to subscription rupees 40,000. Total of receipt side is equal to 80,000. Okay, and in payment side, by rent 18,000, by wages 7,000, by billiard table 14,000, by furniture 10,000, by interest 2,000, by postage 1,000, by salary 24,000, and by cash in hand closing rupees 4,000. Total of payment side is equal to 80,000. Prepare income and expenditure account and balance sheet with the help of following information. Subscription outstanding on 31st March 2020 is rupees 1,200 and rupees 2,300 on 31st March 2021. Opening stock of postage stamp is rupees 300 and closing stock is rupees 200. Rent rupees 1,500 related to the year ended 31st March 2020 and rupees 1,500 is still unpaid. On 1st April 2020, the club owned furniture rupees 15,000, furniture valued at rupees 22,500 on 31st March 2021. The club has a loan of rupees 20,000 as the rate of 10% per annum, which was taken in the year ended 31st March 2020. ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो मेरे भाई, आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम को लेंगे। अगर कोई प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर मींस एडवांस ईयर से रिलेटेड अगर कोई आइटम की ऐड हो गई है तो कंसर्न आइटम से हम लोग लेस कर देंगे। इसमें कैश और बैंक बैलेंस को नहीं शो किया जाएगा, इसमें कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज को नहीं शो किया जाएगा। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रही है, जैसे डिप्रिसिएशन लग रहा है फर्नीचर पे फॉर एग्जांपल्स, या इसके अलावा कोई भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, तो एट फर्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन में एक एक आइटम पे एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ
कैश इन हैंड ओपनिंग दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एंट्रेंस फी जो दिया हुआ है आपके इनकम में आएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है तो ये डायरेक्ट आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा। लॉकर रेंट इनकम में आएगा। लाइफ मेंबरशिप फी ये आपके कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में मानी जाएगी और ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड सब्सक्रिप्शन ये दोनों आपका इनकम साइड में आएगा। इन पेमेंट साइड में लिखा है रेंट 18,000 तो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। वेजेज भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। बिलियर्ड टेबल आपकी एसेट्स है तो एसेट्स को हमारा बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। ये लिखेंगे फर्नीचर दिया हुआ है ये भी आपकी एसेट्स है तो यहाँ पे इनकम साइड में आपका नहीं आएगा या एक्सपेंडिचर साइड में। इंटरेस्ट आपका दिया है पेमेंट साइड में दिया है तो एक्सपेंडिचर में आएगा। पोस्टेज आपका दिया हुआ है लेकिन पोस्टेज में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है तो हमको पोस्टेज कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक में जो आपका ये करेंट ईयर का 1000 है आप इसको ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। क्लियर। सैलरी आपका दिया हुआ है तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैश जो दिया हुआ है ये आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। क्लियर। आगे सब्सक्रिप्शन में देखेंगे 2020 का सब्सक्रिप्शन 1200 है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो आप लेस कर देंगे, लेकिन करंट ईयर से रिलेटेड आपका सब्सक्रिप्शन 2300 बचा हुआ है तो आप इसको ऐड कर लेंगे, एक्रूड मान लेंगे। क्लियर। इसी तरीके से ओपनिंग स्टॉक में अभी मैंने बताया कि ओपनिंग स्टॉक आप स्टैंप में दिया है या पोस्टेज स्टैंप तो आपका ओपनिंग स्टॉक में जो आपका जैसे ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में पोस्टेज स्टैंप का 300 दिया है और इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो पोस्टेज दिया हुआ है 1000 आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 1300 होगा और लेस क्लोजिंग स्टॉक आप 200 को माइनस कर देंगे तो 1100 हो जाएगा। क्लियर। इसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में शो कर देंगे। रेंट 1500 आपका रिलेटेड प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो प्रीवियस ईयर की आइटम को माइनस कर देंगे और करेंट ईयर से रिलेटेड 1500 रुपए दिया हुआ है तो आप इसको ऐड कर लेंगे। क्लियर। और क्लब के पास फर्नीचर 15,000 रुपए का है, पहले फर्नीचर 15,000 का है लेकिन आप लोग देखिए पेमेंट साइड में फर्नीचर की वैल्यू 10,000 दिया हुआ है, आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 15 10 25,000 हो जाएगा और फर्नीचर का एंड ऑफ ईयर की वैल्यू 22,500 रुपए दिया है 22,500 तो आप इसको माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 2,500 आएगा जिसको आप डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर कोई सेल तो हुआ नहीं है तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा नहीं। फर्नीचर की वैल्यू एंड ऑफ ईयर में माइनस हो जा रही है, घट जा रही है तो इसको आप डिप्रिसिएशन मानेंगे। क्लब के पास लोन 20,000 का 10% है, क्लब ने एक लोन लिया है तो लोन तो लायबिलिटीज हो जाएगा और दूसरा चीज की 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है तो 20,000 का 10% आप निकालेंगे तो 2,000 होगा और 2,000 आपका पेमेंट साइड में दिया ही है तो वो आपका एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। इंटरेस्ट आप देखेंगे पेमेंट साइड में 2,000 दिया है और आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो अब हम लोग क्या करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे। ओके, हम ये देखते हैं क्वेश्चन। शंकर स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दैट्स योर एक्सपेंडिचर साइड अमाउंट, इनकम अमाउंट। ओके, अब देखते हैं जैसे आपके एक्सपेंडिचर साइड में टू रेंट 18,000 दिया हुआ है, लेस प्रीवियस ईयर का 2020 का आपका 1,500 रुपए है 1,500 तो माइनस कर देंगे 16,500 होगा। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 2021 2021 का 1,500 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग है, बकाया है तो आप जोड़ देंगे तो 18,000 18,000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद टू वेजेज है 7,000 ये जाएगा, टू इंटरेस्ट है 2,000 ये भी आएगा, टू पोस्टेज कंज्यूम्ड निकालेंगे मेरे भाई। आप देखें कि ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में देखिए एडजस्टमेंट में दिया है 300 तो 300 आप लिखेंगे। एड न्यू पोस्टेज आपके पेमेंट साइड में 1,000 की पोस्टेज दिया हुआ है तो आप ये 1,000 की पोस्टेज को ऐड कर लेंगे तो 1,300 होगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक पोस्टेज की वैल्यू 200 दिया हुआ है तो 200 को माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में 1,100 होगा। टू सैलरी 24,000 होगा आपके एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आप जरा देखिए कैसे कि आपका ये वर्किंग नोट दिया हुआ है, जैसे फर्नीचर हम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैसे निकाले हैं इसको देखेंगे। टोटल फर्नीचर की शुरू की वैल्यू आप देखिए 15,000 का था, ड्यूरिंग द ईयर आपका जो है 10,000 की फर्नीचर परचेज हुई है, टोटल 25,000 हो गया। लेस यहाँ पर देखेंगे कि एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू 22,500 रुपए दिया है 22,500 तो
तो डिफरेंस की अमाउंट 2500 होगा। वो जो है कि आपका इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500 लिख देंगे। क्लियर। अब मेरे भाई देखते हैं आपके रिसिप्ट साइड में जो दिया हुआ है इंट्रेंस फी, तो वो आपके इनकम साइड में आ जाएगा 3200। लॉकर रेंट आपके इनकम साइड में आएगा, बाय लॉकर रेंट 1200, प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 3000, ओके। बाय सब्सक्रिप्शन देखेंगे 40,000 रुपीज दिया हुआ है। एड यहाँ पे लेस प्रीवियस ईयर जो पिछले साल 2020 का अमाउंट है 1200, तो सब्सक्रिप्शन से माइनस कर देंगे 38,800 होगा। अब ऐड करेंगे एक्रूड, ये करंट ईयर से रिलेटेड अनपेड है, बकाया है, मींस मिलना बाकी है। एक्रूड है तो आप अनपेड भी लिख सकते हैं, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, या एक्रूड सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप एक्रूड लिख दीजिए। तो आप लिख देंगे ऐड एक्रूड, ओके। ये 2021 का सब्सक्रिप्शन है 2300, टोटल आपका सब्सक्रिप्शन एक्चुअल सब्सक्रिप्शन 41,100 होगा। इसके बाद मेरे भाई इनकम साइड का टोटल कम पड़ रहा है और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा पड़ रहा है। क्लियर। तो एक्सपेंडिचर साइड का मींस एक्सपेंडिचर साइड टोटल इज ग्रेटर देन इनकम साइड टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। देन दिस कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज लाइक डिफिसिट, यू कैन से द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर। आप देखेंगे जैसे एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 54,600 हो रहा है। अब आप इसमें से आप ये पेमेंट साइड की आइटम को आप यहां तक के माइनस कर लेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट आपका 6,100 होगा। जो 6,100 होगा वो बाय डिफिसिट लिखा जाएगा और इसको हम लोग एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिख सकते हैं, ओके। ये आपका क्वेश्चन लग गया। अब हम लोग इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ओके। थैंक यू। हाय गाइज, चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट पे डिस्कस करते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। एट फर्स्ट हम लोग कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओके। और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी आपका बैलेंस शो करेगा वो आपका फाइनल बैलेंस शीट में कैपिटल फंड की अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, ओके। देखते हैं जैसे बैलेंस शीट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब एज एट 1 अप्रैल 2020, ये साल के शुरू का डेट मेंशन होगा। ये लायबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है। क्लियर। अब मेरे भाई आपके क्वेश्चन में देखा जाए तो एक आउटस्टैंडिंग रेंट 2020 में दिया है, 2020 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है 1500 रुपए, तो आप 1500 रुपए को लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोन की अमाउंट को लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में लोन भी दिया हुआ है और लोन जो है कि 20,000 दिया हुआ है, तो लोन आपकी लायबिलिटीज होगी, ये क्लब की लायबिलिटीज होगी, तो आप उसको ये लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। आपके क्वेश्चन में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस वीडी लिखा है, कैश का बैलेंस सबसे शुरू वाला बैलेंस है, तो आप लिखेंगे कैश इन हैंड 2,600, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद आपका एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2020 का प्रीवियस ईयर का दिया है, आप देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 1,200, तो इसको हम शामिल करेंगे। इसके बाद हम लोग ओपनिंग बैलेंस से ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप, आपके क्वेश्चन में दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप दिया है 300 रुपए, तो ओपनिंग स्टॉक को आप 300 रुपए को यहां पर शो करेंगे। क्लियर। इसके बाद मेरे भाई फर्नीचर की वैल्यू 15,000 रुपए दिया है, तो फर्नीचर आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, तो टेक्स्ट बुक में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपकी फर्नीचर की वैल्यू 15,000 15,000 रुपए दिया है। क्लियर। और कोई एसेट्स नहीं है। अब हम लोग लायबिलिटीज और एसेट्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो डिफरेंस की अमाउंट रहेगी उसको कैपिटल फंड के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी साइड ज्यादा है, तो आप लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे 21,500 होगा। इसमें से ये जो एसेट साइड दिया हुआ है इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, मींस कैश इन हैंड, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैंप एंड फर्नीचर कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है आप इसको डिडक्ट करेंगे, तो जो डिफरेंस की अमाउंट आएगा वो आपका कैपिटल फंड माना जाएगा। आप लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड या कैपिटल फंड भी लिख सकते हैं। ये डिफिसिट की कंडीशन में है। क्लियर। ये मतलब एक तरीके से बिजनेस में जो कैपिटल फंड है वो डिफिसिट की कंडीशन में है, क्योंकि लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन को लगाया था तो अगर एसेट साइड ज्यादा होता था
और लाइबिलिटीज कम होता था तो कैपिटल फंड हम लोग डिफरेंस की अमाउंट से लाइबिलिटी साइड में शो करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, तो ये डिफरेंस की अमाउंट आपका कैपिटल फंड भी आप लिख सकते हैं या आप ओपनिंग कैपिटल फंड भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में आप डिफिसिट लिख सकते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि आपका डिफिसिट ही है। और अक्सर क्या होता है कि अगर लाइबिलिटी ज्यादा होगा एसेट्स कम होगा तो कैपिटल फंड जो शो करता है वो डिफिसिट बैलेंस ही शो करता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसके बैलेंस शीट पे। ओके, देखते हैं मेरे भाई बैलेंस शीट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब एज एट 1 अप्रैल 2020। ये आपका लाइबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट्स है, अमाउंट है। क्लियर। अब लाइबिलिटी साइड में जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपका 2021 करेंट ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग था वो आपका लाइबिलिटीज में 1500 शो किया जाएगा। इसके बाद लोन की अमाउंट 20,000 आपके क्वेश्चन में दिया है तो आप 20,000 शो करेंगे ही करेंगे। ये आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया है 23,000, आपके ये भी क्वेश्चन में आपके रिसिप्ट साइड में जो दिया हुआ था ये आपकी लाइबिलिटीज बनती है क्योंकि कैपिटल नेचर का है तो लाइबिलिटीज होगा, तो आप इसको यहां पर शो कर देंगे। और लाइफ मेंबरशिप फी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइफ मेंबरशिप फी तो आप 7,000 रुपए को आप शो कर देंगे। क्लियर। अब मेरे भाई आते हैं एसेट साइड में, तो एसेट साइड में देखिए कैश इन हैंड लिखा है 4,000, इसको हम लोग 4,000 शो करेंगे। इसके बाद बिलियर्ड टेबल आपकी एसेट्स है 14,000, ये भी बिलियर्ड टेबल आपकी 14,000 शो करेंगे। ये आपका पेमेंट साइड में दिया हुआ है। और जो ऊपर कैश इन हैंड है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में सबसे लास्ट में देखेंगे बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ था तो उसकी अमाउंट आपका 4,000 दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू 15,000 15,000 रुपए है। एड न्यू फर्नीचर, नया फर्नीचर 10,000 रुपए का खरीदा गया, आपका टोटल हो गया 25,000 रुपए। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन की वैल्यू 2,500 हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया था एक्सपेंडिचर साइड में। क्लियर। तो 2,500 को माइनस कर देंगे तो आपका ये 22,500 22,500 रुपए एक्चुअल फर्नीचर की वैल्यू आ गया। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2021 का 2,300 रुपए दिया हुआ है। क्लियर। इसके बाद आपके क्लोजिंग स्टॉक का पोस्टेज स्टैंप आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 200 रुपए, ये आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में देखिए 200 रुपए दिया हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि ये डिफिशियंसी, चूंकि आप देख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से भी डिफिशियंसी आया है और ओपनिंग कैपिटल फंड यहां पर जो निकला है ये भी डिफिसिट की कंडीशन है, तो दोनों डिफिसिट को आप एक जगह जोड़ सकते हैं। क्लियर। तो आप इसको एसेट साइड में दिखाएंगे, अगर यही आपका कैपिटल फंड पॉजिटिव रहता तो आप यहां पे क्या कर देते, यहां पे लायबिलिटी साइड में दिखा के कैपिटल फंड में हम लोग अगर सरप्लस होता तो ऐड कर लेते, डिफिसिट होता तो लेस कर देते। लेकिन कैपिटल फंड भी आपके डिफिसिट की कंडीशन में शो कर रहा है और ये भी आपके डिफिसिट की ही कंडीशन में शो कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि डिफिशियंसी के अंतर्गत आपका कैपिटल फंड है और 1 अप्रैल 2020 को 2,400 रुपए। क्लियर। ये आपका 2,400 रुपए देखेंगे, ये ओपनिंग कैपिटल फंड जो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट है इससे मिल करके आ रहा है। और ये जो आपका डिफिसिट 6,100 है ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से डिफिसिट आया है, लॉस आया है। तो आप इसका टोटल आपका दोनों का टोटल कर देंगे, इसका 6,100 है एंड 2,400, टोटल 8,500 होगा। और जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी साइड का जब टोटल करेंगे तो आपस में इक्वल होगा 51,500। दैट्स ऑल। थैंक यू।